Good morning everybody. Welcome back to Maths online class. And here we are going to start chapter number 4 for class 10. And the chapter is linear equation with two variable. So see here, today we will solve some of the questions, and by that only the concept will be clear to you. But before taking the question, first I will revise the things whatever you are already knowing before. Whatever the things that you have already studied in class 9, and that is totally related to the linear equation. And here we have to especially discuss the linear equation with the two variables. So first I want to tell you what is the standard form of the linear equation with two variables. So it is written in form of ax plus by plus c is equal to 0. Wherever a it represents the coefficient of x, b you can say it is the coefficient of y, and you can see there are two variables. One is the variable x and the second variable is the y. And with the condition that a and b both the coefficient of x and y, means coefficient of the variables, it should not be equal to 0. Why it should not be equal to 0? Because in the condition if any of the coefficient, either it is a, either it is b, if it is equal to the 0, so you can say the existence of the linear equation with two variable will be affected totally. Either it will be converted in form of the linear equation with one variable, otherwise it will not remain the linear equation. And that's why that particular condition is very important. Wherever I am saying that both the coefficient it should be never equal to 0. So that is the standard form of the linear equation. Whatever the questions that I will solve right now, it will be in the same form. Generally what happens, the question which are given to you, it is not generally in the standard form, so you have to write down the given equation in this particular form. Means what I mean to say, equal to 0 form. Suppose this particular c, see here, that particular c, it is the constant term. It will represent any kind of the numeric digit. So that particular digit, if it is present on the right hand side, in any of the case, so you have to shift that c into the left hand side, into the variable side, and finally equal to 0 on the right hand side till you are not getting equal to 0. So you can think that that particular form it is not in the standard form. So equal to 0 form, actually it is called the standard form. And after that we will find the solution of it. So see here, directly I am taking the question, and rest of the things we will clear after that. See here, for example, this is the question, x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. So you can see that there are the two linear equation with the two variable. So commonly it is also known as the simultaneous linear equation. Pair of linear equation with two variable, it is also known by simultaneous linear equation. And first what we have to do, we have to find the first we will take single equation, and after that we will find their solutions. At least 3 solutions we will find out. Right now the question arises, what is the solution of the linear equation? Solution of the linear equation means we have to find out the x coordinate and y coordinate one after other. Means any of the 3 x coordinate and 3 y coordinates, means the values of x and y's which are satisfied any kind of the linear equation, it is known as their solutions. Otherwise it is also known as the roots of the linear equation. ठीक है, x और y की कोई भी वैल्यू जो होती है उस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे, and that we can find out because that already we have done in the 9th class also. ठीक है, so इसको हम लोग ट्रायल और एरर वाले मेथड से x की कोई भी एक वैल्यू अपन कंसीडर करते हैं और y की निकाल लेते हैं, अदरवाइज y की कंसीडर करके x की निकाल लेते हैं. सो इस तरीके के एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आप निकालेंगे और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, आपको 3 पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द x एंड y कोऑर्डिनेट आपको एक पॉइंट मिलता चला जाएगा कार्टेशियन प्लेन में, जिसको हम लोग xy प्लेन भी बोलते हैं. सो इस तरीके से 3 पॉइंट्स हम लोग लोकेट करेंगे, एंड फाइनली वी विल मैच द 3 पॉइंट्स विद द स्ट्रेट लाइन.
सो वो जो लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय दैट पर्टिकुलर लाइन। वो जो अपने को स्ट्रेट लाइन मिलता है ना, दैट इज वो इस लाइन का इक्वेशन होता है, इस लाइन का, जिस इक्वेशन को हमने कंसीडर किया है। सेम लाइक दैट, सेम वर्क आई विल रिपीट फॉर द सेकेंड इक्वेशन, और दोनों लाइंस का नेचर में देखूंगा, ठीक है। वी विल सी द नेचर ऑफ बोथ द लाइंस, either these lines are parallel with respect to each other, either these both the lines they are intersecting, okay, either both the lines they are present on the same line, so it is known as the what it is called, coincident lines, ठीक है। So look here, first for x plus y is equal to 5 करना क्या है, ठीक है। अपने को इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन मी, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप x इज इक्वल टू समथिंग निकालना चाहते हो कि आप y समथिंग निकालना चाहते हो। सो राइट नाउ यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस वी हैव टू वर्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है फिलहाल, y का कोफिशिएंट भी 1 है, तो अपने को कुछ भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। और अपने को होल नंबर निकालना होता है, ठीक है। जनरली वी हैव टू ट्राई फॉर द होल नंबर। अपने को जो भी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा x कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट का, इट शुड बी इन फॉर्म ऑफ द होल नंबर। वो होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, मींस इन फॉर्म ऑफ -2, -3, -5, और यू मे से इन द पॉजिटिव टर्म्स 2, 3, 5, 7 लाइक दैट। इट शुड बी नॉट इन फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। बाय मिस्टेक अगर कई बार होता भी है तो उसको अपन डेसिमल में कन्वर्ट करके भी काम कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली वी शुड थिंक अबाउट द होल नंबर। अब राइट नाउ सी x is equal to 5 minus y. This particular equation it can be also written in form of x is equal to 5 minus y. अब यहाँ से हम लोगों को 3 पॉइंट्स निकालने होंगे x and y coordinates. That particular work we have done in the 9th class, so it is very easier work for you all. ठीक है, अभी हम लोग पहले x और y कोऑर्डिनेट्स की 3 पॉइंट निकाल लेंगे। इसी तरीके से सेम वर्क अपन सेकंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे और उसके भी 3 पॉइंट्स निकाल लेंगे, और 2 लाइनें अपने को ड्रॉ करनी होगी ऑन द ग्राफ पेपर। और ग्राफ पेपर में दोनों लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगी, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अपने को बताना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द यूनिक, इट विल रिप्रेजेंट द यूनिक सॉल्यूशन। सो फर्स्ट वी हैव टू रिड्यूस। अब राइट नाउ सी एक जो स्टार्ट कहां से करें, द क्वेश्चन अराइजेस स्टार्ट कहां से करना चाहिए, तो जनरली अपने को 0 से स्टार्ट करना चाहिए। मींस सबसे पहले मैं y 0 रख देता हूं तो x क्या मिलता है। सो यू कैन सी इसके लिए कोई रफ वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। y की वैल्यू आपने 0 रखी और x की वैल्यू क्या मिलेगी 5 minus 0। 5 minus 0 means 5। So by putting the value y is equal to 0, we are getting the value of x 5। Same like that, अगर मैं 1 रख देता हूं, y की वैल्यू मैं 1 रख देता हूं, so I will get x की वैल्यू 4। You can see 5 minus 1 is equal to 4। Same like that, if I am putting y is equal to 2, there are so many options for me। मैं यहाँ पे 5 भी रख सकता था, ठीक है, जनरली चलो 2 रख देते हैं। So 2 रखते ही 5 minus 2 3। So these are the x and y coordinates, ठीक है। इस तरीके से मैंने 3 x कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिए, 3 y कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिए। तो ये कंटिन्यूअसली जो x और y कोऑर्डिनेट है ये कौन से लाइन से निकला हुआ है, x plus y is equal to 5। अब इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, ठीक है। बट बिफोर दैट काम अपने को ये करना चाहिए कि इसके भी अपन कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं सेकंड वाले लीनियर इक्वेशन के, एंड आफ्टर दैट वी विल प्लॉट बोथ द लाइंस टुगेदर, ठीक है। लुक हियर, so that what is the second equation, 2x plus 2y is equal to 10, and by that only you can say it could be written 2x is equal to 10 minus 2y, ठीक है। and after that x is equal to 10 minus 2y upon 2, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसको x के फॉर्म में सॉल्व कर लिया। If you want, you can also solve the same equation in form of y, ठीक है। आप इसको y के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, that does not affect the results, ठीक है। इससे रिजल्ट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला कि आप इसको x is equal to आप निकाल लीजिए या y is equal to निकाल लीजिए। यहाँ पे इसका भी कोफिशिएंट 2 था, इसका भी कोफिशिएंट 2 था,
है ना। जनरली अपने को ये देखना होता है कि कौन सा अपॉन में लेने से अपने को होल नंबर जल्दी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों दो हैं। जनरली ऑड नंबर्स जो होते हैं, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता, यहाँ पे 5 लिखा होता, तो मैं जनरली 5 लेता। क्यों? क्योंकि 5 से किसी भी चीज को मैं जल्दी से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। 3 मैं नहीं लूंगा। अगर कहीं पे इवन नंबर है 2 और कहीं पे ऑड नंबर है 3 कोफिशिएंट के रूप में, तो जनरली अपने को कोशिश करनी चाहिए कि अपॉन में 2 आए, क्योंकि 2 से किसी भी चीज को, ऑड नंबर को भी मैं घटा सकता हूँ पॉइंट के रूप में, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। राइट नाउ वी विल गो फॉर द कोऑर्डिनेट्स, सो x and y. Some of the students, those who are feeling little uncomfortability, they can also do this in form of the rough copy. स्टार्टिंग में आप इसको रफ कॉपी में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही आसान सा काम था, इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप स्टार्टिंग में रफ पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लुक हियर, x की वैल्यू तब निकलेगी व्हेन आई विल पुट एनी काइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ माय चॉइस हियर, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया था, अगेन आई एम स्टार्टिंग विद द वैल्यू 0। मैं 0 से स्टार्ट करता हूं और डायरेक्ट ही करते हैं बेटा। 10 माइनस 2y अपॉन 2, y की वैल्यू 0 रखते ही ये माइनस का 2y जो है ये पूरा का पूरा हो जाने वाला है 0। सो 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 को आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 5। तो आप देख सकते हैं वही पॉइंट मिल रहा है जो इधर पे मिल रहा था, ठीक है। नो प्रॉब्लम, वी विल मूव फर्दर। दिस टाइम आई विल पुट y की वैल्यू को मैं रख देता हूं 1, ठीक है। लुक हियर, वही वैल्यू रख देता हूं, यू कैन सी वही चीजें मिलने वाली, यू कैन सी मींस दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, एक के ऊपर एक आएंगी, और इस केस में अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलता है, दैट आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। सो सी हियर, जैसे ही 1 रखते हैं सो मिलेगा क्या, 10 माइनस 2 into 1। y की वैल्यू को 1 रखते ही ये 2 into 1 मतलब 2 हो जाने वाला है, मींस माइनस का 2, और 10 माइनस 2 आपको न्यूमरेटर में देगा 8। 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, एंड 8 अपॉन 2 को आप सॉल्व करोगे तो आपको 4 मिलेगा। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप रफ में चेक भी कर लेना, तो आपको 8 अपॉन 2 की जगह मतलब 4 मिलने वाला है। अगेन यू कैन चेक, वही चीज यहाँ पे भी लिखी। अभी मैं इसको करके भी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों इक्वेशन एक्चुअल में एक ही हैं, केवल उसके रूप को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। लुक हियर, जैसे मैं 2 रखने वाला हूं, सो अगेन यू कैन सी 2 2 जा कितना आने वाला है 4। सबसे पहले y वाले टर्म्स को मैं सॉल्व कर रहा हूं, माइनस 2 into 2 4 मिल जाएगा। 10 माइनस 4 आपको मिलेगा 6 इन द न्यूमरेटर, और 6 मिलते ही साथ 6 को आपको अपॉन करना है 2 के साथ, 2 से डिवाइड करना है। सो 6 अपॉन 2 मींस 3, you will get 3। So by putting the y coordinate 2, you will get x is equal to 3, and again you can compare with the first equation, same coordinates अपने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट मिले हैं वही पॉइंट अपने को यहाँ पे भी मिल गया। y ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि if you will see this particular equation, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, 2x plus 2y is equal to 10, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो 2 यहां से कॉमन लिया जा सकता था, so it can be also written 2x plus y is equal to 10। Okay, so see here, we have find x and y coordinates, means 3 points we have find out for both the linear equation separately. These are the x and y coordinates for this particular linear equation with 2 variable, and same like that these are the x and y coordinates for the second linear equation. And why we are getting the same kind of the points here? So the reason I was explaining you. Look here, if you will solve the second linear equation, so you will get the same previous equation. See here, 2x plus 2y is equal to 10. That was the second linear equation. It could be also written as 2. 2I can take common because 2 is present in the first term and second term. So it could be also written as this. And after that x plus y, that 2. If I will transfer that 2 from left to right hand side, so 10 upon 2, and finally it will give me x plus y is equal to 5. So you can see the same equation I am getting. Means these both are the same equation, only the form is going to be changed.
and if you will draw the points, so you will get the coincident lines. Look here, right now I will draw it. We have to remember the coordinates 0, 5, that I am writing here, 4, 1, and when we are generally the coordinates, it will be written, first we have to write down the x coordinate, after that comma, after that y coordinate. So 0, 5, 4, 1 and 3, 2. These are the same common coordinates for both the linear equations. And if we will draw this on the graph paper, so we will get the two lines which are coincident nature, means we will get the infinite solutions. There are so many points which will satisfy both the linear equation. So see here, this is the x coordinate, x rays o x. This is the positive x axis on the right hand side, and all the negative coordinates of x, it will be represented by the negative y axis, means on the left hand side. Same like that, on the upper side we will get the positive coordinates of y, and on the down side we will get the negative y axis. In terms of the x axis, upper side we will get the, this is known as the positive x coordinates, means on the upper side, and negative coordinates of y we will get on the down side. Same like that, on the right hand side we will get all the positive values of x, means it is known as the positive x coordinates quadrant, which will represent the positive x coordinates. Same like that, negative x coordinates represented by the left hand side. Right now I will draw the points 0, 5. The value of x is 0 and the value of y coordinates is 5. It means that if the x coordinate is 0, so that particular point it will be present on the y axis. If the x coordinate is 0, so that particular point will be present on the y axis. इसी तरीके से अगर y coordinate 0 होता, so if the y coordinate is 0, so that particular point will be present on the x axis. x axis का 0 होना ये बताता है कि वो पॉइंट y axis में होना चाहिए, और y coordinates का 0 होना ये इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट x axis में होगा. So 0, 5 कहां पे मिलने वाला है? This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and actually this is 5. So 0, 5 means that particular point 0, 5 you can see here. Second point is the 4, 1. X coordinate 4, y coordinate 1. X coordinate 4, so this is 1, 2, 3, 4, 5. X coordinate positive 4 means this 4, and y coordinate positive 1 means this 1. So x coordinate 4, y coordinate 1, so this particular point will represent 4, 1. Same like that, finally 3, 2 we have to plot here on the xy plane. So x coordinate 3, y coordinate 2. X coordinate 3, positive 3, y coordinate 2, positive 2. So this particular point will represent the coordinates 3, 2. And the same coordinates we are getting for both the linear equation. So by joining all the points, we will draw such kind of the line with the help of the scale. ठीक है, ये काम आपको स्केल के साथ करना होगा, स्ट्रेट लाइन खींचना है by joining all the three coordinates, by joining all the 3 points. After that, आपको कोई दूसरी लाइन इसलिए नहीं मिली क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम टू सेम थे. इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे, these are the arrows, तो आपको 2 एरो लगाने होंगे. कितने एरो लगाने होंगे? 2, क्योंकि दोनों की दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन. कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइंस कहने का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट है, मतलब इनका हर पॉइंट कॉमन है. इफ आई टॉक अबाउट द कॉमन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट्स होता है जहां पे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसी को सॉल्यूशन बोला जाता है. ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कॉमन पॉइंट होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर सो मेनी कॉमन पॉइंट्स. अभी मैंने 3 पॉइंट ही निकाले थे. अगर आप चाहें तो आप जितने भी पॉइंट्स निकालोगे वो सब पॉइंट्स उसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे. सो नेचर ऑफ द लाइन के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस.
और अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो that is the graph, and that graph work you have to do in the graph paper. Here I am not going to write down -1 -2, that you can understand. इधर माइनस निगेटिव है ना, निगेटिव y x एक्सिस है एंड डाउन में निगेटिव y एक्सिस है। सो इस तरीके से अपने को काम करना होता है और देयर आर द ओनली 3 कंडीशंस। अगर इंटरसेक्ट करते एक पॉइंट पे तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते x और y के उस कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता वही हमारा आंसर होता। अगर दो लाइनें पैरेलल मिलती, इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ऑल, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे नहीं कर रही है, सो दैट इज द केस ऑफ द पैरेलल लाइन एंड नो सॉल्यूशन। और अगर इस तरीके की सिचुएशन है जिसमें एक के ऊपर एक आ गए, सो इसको कोइंसिडेंट लाइंस बोला जाता है, और इस पर्टिकुलर केस में देयर आर सो मेनी कॉमन पॉइंट्स, और सो मेनी कॉमन पॉइंट्स होने की वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सो दैट वाज द क्वेश्चन एट ऑल। लुक हियर, one more question I am solving here. See, so look, I am taking one more question. Look here, that is the question. 2x minus 5y plus 4 is equal to 0. This is the first linear equation, and second linear equation is 2x plus y minus 8 equal to 0. So you can see there are the two linear equation. First 2x minus 5y plus 4 equal to 0, and second 2x plus y minus 8 equal to 0. Same work I have to do. Right now you will see. मैंने x के टर्म्स में निकालने का सोचा, तो 2x को बस यही रखना है, बाकी सारी चीजों को उधर ट्रांसफर करना है। उधर ट्रांसफर करेंगे तो पहले वेरिएबल वाला टर्म्स को लिख लेता हूं, -5y उधर जाने के बाद +5y, सेम लाइक दैट, +4 को उधर ले जाने के बाद -4। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, केवल x वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे कंसीडर किया एंड अदर वेरिएबल टर्म्स को मैंने राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर आउट कर दिए। तो व्हेन वी चेंज द साइड, so definitely the sign plus will become minus, minus will become plus, same like that I have done here. पहले का जो previous sign था उसको बस मैंने change किया है। अब right now see 2x is equal to निकला, so I have to get the value of x, मुझे x की वैल्यू चाहिए, so x is equal to I can write down 5y minus 4 upon 2। ये मैंने निकाल लिया इसका सॉल्यूशन। इसी तरीके से काम यहाँ पे भी करता हूँ। अब right now see, निकालने से पहले एक सेकंड के लिए रुकना और सोचना कि क्या मैं इसको x के रूप में निकालूं या क्या मैं इसको y के रूप में निकालूं। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 1, और अगर y का कोफिशिएंट 1 है तो हम हेडेक लेना नहीं चाहेंगे किसी भी चीज का। हम क्यों चाहें कि अपॉन में इसको फिर से 2 से डिवाइड करूं, अपॉन में 3 से डिवाइड करूं। अगर मैं इसको x इज इक्वल टू निकालता हूं तो अपॉन में आएगा 2, अपॉन में कितना आएगा 2, अपॉन में 2 आने की वजह से क्या होगा कि अगेन आई हैव टू डिवाइड इट बाय 2। जितने भी पॉइंट्स मैं y के लूंगा फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा, फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो इस टाइम पे करता हूं कि इसको y के रूप में निकाल लेते हैं। y के रूप में निकालेंगे तो x वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करते ही जो y का टर्म, सॉरी x वाला जो टर्म है वो -2x हो जाएगा, लेफ्ट में वो +2x था, इट विल बी -2x आफ्टर शिफ्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड, और माइनस का जो 8 है इट विल बिकम प्लस का 8। ठीक है, सो आई विल गेट y इज इक्वल टू -2x plus 8। राइट नाउ यू विल सी x and y, फाइनली आई हैव टू गो फॉर द x and y coordinates, so I will make this kind of the table and I need 3 points only, है ना। यहाँ पे तो रफ करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन सी x की कोई वैल्यू रखते हैं और y की निकाल लेते हैं। मैंने x की वैल्यू सबसे पहले स्टार्ट किया 0 रख के, सो यू कैन सी x की वैल्यू 0 रखते ही -2x जो है वो क्या हो जाएगा 0, -2x की 0 होते ही मुझे y की वैल्यू मिलती है 8। सेकेंड, अब मैं रखता हूं x की जगह 1, x की जगह मैंने रख दिया 1, तो आप देख सकते हैं x की जगह 1 रखते ही ये -2 बन जाएगा, क्योंकि -2 into 1 -2।
-2 प्लस 8 को सॉल्व करेंगे सो -2 प्लस 8 आपको मिलेगा 6। कितना मिलेगा? -2 और प्लस 8 मतलब 8 में से 2 को माइनस करना है सो यू विल गेट 6। तो जब आपने x की वैल्यू को 1 रखा सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y 6। सेम लाइक दैट x की वैल्यू मैं इस बार रखता हूं 2 and if you will put the value of x2 here so -2 into 2 -4 it will become -4 और माइनस का 4 प्लस का 8 आपको मिलेगा प्लस का 4 क्योंकि 8 में से 4 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे सो यू विल गेट द y कोऑर्डिनेट 4। इस चीज को आप और रफ में चेक आउट कर सकते हैं और आफ्टर प्रैक्टिसिंग 1 टाइम 2 टाइम आप इसके लिए हैबिचुअल हो जाओगे, आपको बहुत आसानी से करना आ जाएगा। Look here, same work I have to do for that particular linear equation which I have written on the left hand side of the board। यहाँ पे सबसे पहले मैंने y की वैल्यू को 0 रखा। You can see y की वैल्यू को 0 रखते ही ये 5y वाला टर्म्स 0 हो जाता है। 5y वाला टर्म्स 0 होते ही आपको मिलेगा -4/2। -4/2 को आप सॉल्व करेंगे मतलब 2 से 4 को घटाया जा सकता है। हाउ मेनी टाइम्स? -2 टाइम्स। तो आपको x की वैल्यू मिलती है -2। इस चीज को स्लोली आप चेक आउट कर सकते हैं रफ में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेम लाइक दैट अब मैं रखता हूं y की वैल्यू को मैंने रखा 2। y की वैल्यू को मैंने रखा 2। आप बोलेंगे मैंने 1 क्यों नहीं रखा? तो आप देख सकते हैं अगर मैं y की वैल्यू को 1 रखता हूं तो मुझे मिलता 5 ओनली। 5 into 1 5 और अगर मुझे 5 मिलता तो 5 में से 4 को माइनस करने के बाद मिलता 1 और 1/2 क्या हो जाता? फ्रैक्शन हो जाता। एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 1/2 को मैं 0.5 मान के भी ड्रॉ कर सकता हूं। स्टिल मैं चाहता हूं कि कोई होल नंबर मिले, इसलिए y = 1 मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने y = 2 रखा। y = 2 रखते ही ये होता है 5 2 जा 10। 5y है तो y की वैल्यू 2 रखते ही आपको मिलता है 5 2 जा 10। 10 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करने पे मिलता है 6 और 6/2 करने पे आपको मिलेगा 3। तो इसलिए मैंने y की वैल्यू को 2 कंसीडर किया है क्योंकि मुझे होल नंबर मिल रहा है, 3 मिल रहा है, x की वैल्यू भी 3 मिल रही है। किसी भी केस में कोशिश ये होनी चाहिए कि x या y में से होल नंबर ही मिले, मतलब करेक्ट फॉर्म में मिले। 1 2 3 4 -1 -2 के फॉर्म में चाहिए। वी डोंट वांट फ्रैक्शन हियर, ठीक है। सेम लाइक दैट y की वैल्यू को 3 रखेंगे तो 5 3 जा होगा 15। 15 में से 4 गया 11 मिलेगा। फिर से मेरे को रैशनल नंबर के टर्म्स में मिलेगा तो मैंने y = 3 को कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू को रखता हूं 4। 4 रखते ही मुझे मिलेगा, y की वैल्यू को रखा हमने 4 सो 4 into 5 20। 4 into 5 20। y की वैल्यू को 4 रखते ही आपको यहाँ पे 5 4 जा 20 मिलेगा। उसके बाद 20 - 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 16 और 16 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 8, ठीक है। तो these are the values for that particular linear equation, these are the values for this particular linear equation। Now right now see, I have to draw both the things on the graph paper। तो इस पॉइंट्स को अपन यही रखते हैं, पॉइंट्स को लेफ्ट में लिखते हैं। Look here, -2 0 -2 0 3 2 and 8 4 and for that line 0 8 1 6 and finally 2 4। nothing is, we will draw the x and y plane। x def o x, y o y dash। अब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। -2 0 so here -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4 +5 +6। सबसे पहला पॉइंट मिला -2 और 0। आप देख सकते हैं y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट का 0 होना इस बात को इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन x एक्सिस में आएगी और कहां पे आएगी? जहां पे x की वैल्यू -2 है। तो मेरे को x की वैल्यू -2, ये वाला जो पॉइंट होगा ये इंडिकेट करेगा -2 और 0 को।
क्योंकि यहाँ पे y 0 है क्योंकि x एक्सिस में आ गया और x की वैल्यू माइनस का 2 है। सेम लाइक दैट 3 2 एक के बाद एक काम कर रहे हैं। 3 2 को प्लॉट करना है, मतलब x की वैल्यू 3 प्लस का 3 और y की वैल्यू प्लस का 2। y इधर पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5। सो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, मतलब इधर से 3 इधर से 2। दिस इज द लोकेशन ऑफ 3 2। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ मिला और दूसरा पॉइंट यहाँ मिल रहा है। ड्रॉ भी करना है, ज्वाइन भी करना है, इसलिए 3 2 को ऐसी जगह लिखें जहां ज्वाइन करने में दिक्कत ना हो। सेकंड यू कैन सी 8 4। अब मुझे ड्रॉ करना है, x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है, सो दिस इज 7, दिस इज 8। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी है 4। तो ऐसा पॉइंट यहाँ पे x तो 8 है और y 4 है, वो पॉइंट मिलता है ये। यू कैन सी दिस इज द लोकेशन ऑफ 8 4। सो बाय ज्वाइनिंग 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, इसको अपने को ज्वाइन करना है। सो इस तरीके से अपन ज्वाइन करते हैं। सो यू कैन सी दिस इज द लाइन, ठीक है। एक -2 0, सेकंड 3 2 एंड थर्ड इज द 8 4। तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते ही विद द हेल्प ऑफ द स्केल आपको इस तरीके से एक लाइन मिलेगी और इसका जो भी इक्वेशन होगा उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसका, फॉर एग्जांपल आई कैन राइट डाउन 2x - 5y + 4। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x - 5y + 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन इस पर्टिकुलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। सेम लाइक दैट मुझे फिर से काम करना है 0 8। राइट नाउ यू कैन सी x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 8। तो इसी तरीके से आप इसके लिए भी ड्रॉ करोगे तो y कोऑर्डिनेट कहीं ऊपर में आपको मिलेगा, ठीक है। 0 8 मतलब जहां पे y कोऑर्डिनेट 8 है वहां पे मिलता। फॉर एग्जांपल अभी मैं मान लेता हूं ये दिस इज द लोकेशन ऑफ 0 8। यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। यू कैन ड्रॉ 1 2 3 4 5, सेम लाइक दैट 6 7 8। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 8 है, दैट इज द लोकेशन ऑफ 0 8। सेकंड कोऑर्डिनेट देखो 1 6 मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6। सो इसी तरीके से दूसरा पॉइंट मिलेगा एंड थर्ड आपको मिलेगा 2 4। So we will draw both the lines and after that we will find out the solution. Till here I am going to finish my lecture. So इस तरीके से यहाँ पे अभी मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज y कोऑर्डिनेट के लिए ऊपर स्पेस नहीं है। So इस तरीके से आपको 0 8 मिलेगा, 1 6 मिलेगा, 2 4 मिलेगा और तीनों लाइन को, ठीक है, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अगेन वी विल ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन और फिर दोनों लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट उनका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ओके।